تشریف رکھیں. خدا کی شکر گزاری کریں گے اس وقت کے لیے, اس کی پاک حضوری کے لیے, اس کے مسا کے لیے. اور آج شام ہم کلام مقدس میں سے اسی بات کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ پرانے عہد نامہ میں, یعنی پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کے اندر جو کہ قوم بنی اسرائیل تھی, خدا کی حضوری کس طرح سے رہتی اور خدا کس طرح سے بات کرتا, خدا کس طرح سے ان کے اندر چلتا پھرتا, اور خدا کس طرح سے ان کے اندر نظر آتا, اور خدا نے ان کے بیچ میں رہنے کا ایک ذریعہ, ایک وسیلہ جو بنایا وہ تھا خیمہ اجتماع اور عہد کا صندوق. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانہ کا خیمہ اجتماع کون ہے؟ انسان. آج ہم خیمہ اجتماع ہیں جہاں پہ خدا کا روح رہتا ہے, جہاں پہ خدا کی حضوری سکونت کرتی ہے. اور پرانے عہد نامہ میں ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ انسان گناہ کے وسیلہ سے خدا کے حضور سے کاٹ ڈالا گیا تھا. اس سبب سے خدا جو تھا خیموں میں رہتا تھا, مگر یسوع کی قربانی کے بعد آج یہ ممکن ہے کہ خدا خیموں میں نہیں بلکہ انسانوں کے اندر رہتا ہے. پریز گاڈ. تو آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کی حضوری کا آغاز کس طرح سے ہوا اور کیوں خدا رہنا چاہتا تھا انسان کے بیچ میں, کیا ضرورت محسوس ہوئی, اور کیوں خدا نے خیمہ اجتماع کو بنانے کا حکم دیا, اور خیمہ اجتماع جو تھا وہ کس طرح سے خیمہ اجتماع اور عہد کا صندوق, یہ دونوں جو چیزیں تھیں, یہ یاد رکھیں کہ یہ دونوں کہ اگر آپ ہم دیکھیں گے ایک دو پیغام ہم آنے والے ہفتوں میں بھی دیکھیں گے اس کے بارے میں کہ اس کی بناوٹ, ان دونوں چیزوں کی, خیمہ اجتماع کی بناوٹ اور عہد کے صندوق کی بناوٹ, اس میں استعمال ہونے والی ایک ایک چیز اور اس کا طریقہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی, نجات اور ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ کرتا تھا جن سے قوم بنی اسرائیل یہ جان سکتی کہ نجات دہندہ آنے والا, یعنی جو خیمہ اجتماع تھا اور جو عہد کا صندوق تھا, یہ دونوں یسوع مسیح کو ظاہر کرتے تھے. اس لیے آج ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے خیمہ اجتماع اور عہد کا صندوق, مسیح خداوند کی علامتیں ہیں. یہ نکالا جو میں نے آپ کو فوٹو بھیجی تھی, فرسٹ پکچر خیمہ اجتماع کی. میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم اس کو سیکھیں, آپ دیکھیں کہ خیمہ اجتماع ہوتا کس طرح کا تھا. خدا نے جب قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا تو جی یہ دیکھیں, اس کو تھوڑا بڑا کریں, یہ دیکھیں جی یہ خیمہ اجتماع تھا. خدا نے جب قوم بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا اور جب وہ بیابان کا سفر شروع کیا تو خدا نے بولا کہ میرے لیے ایک خیمہ بناؤ. اس کو تھوڑا چھوٹا کریں جی, چھوٹا کریں. خدا نے بولا میرے لیے ایک خیمہ بناؤ, اور یہ وائٹ باؤنڈری آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پورا خیمہ تھا. اور یہ خیمہ جو تھا یہ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا تھا. اس کے اندر آپ دیکھیں یہ قربان گاہ ہے, یہ پیتل کا حوض ہے, یہاں پہ پاک مقام تھا اور آخر میں پاک ترین مقام تھا. ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک ایک چیز کس طرح سے مسیح خداوند کی طرف اشارہ کرتی تھی. یہ خیمہ جو تھا یہ خدا کی سکونت گاہ تھا. یہ خیمہ جو تھا یہاں پر خداوند رہتا تھا. اور اگر آپ پڑھیں خروج کی کتاب تو خدا کی حضوری ہمیشہ اس خیمے پر رہتی تھی, اور جب تک خدا کی حضوری خیمے پر رہتی تھی بنی اسرائیل قوم آگے نہیں بڑھتی تھی بلکہ ٹھہر جاتی تھی. اور جیسے خدا کی حضوری اٹھتی تو یہ سائن ہوتا کہ انہوں نے آگے بڑھنا ہے. تو
तो ये जो खैमा था ये खुदा की हुजूरी का निशान था कि खुदा इस खैमे में रहता था, और ये खैमा जो था इसके अंदर हर चीज यीशु मसीह को जाहिर करती थी। और ऐसा नहीं कि खुदा यीशु मसीह सिर्फ खैमा में नजर आता है। अगर हम पुराने ऐद-ए-नामा का मुताला करें तो पुराने ऐद-ए-नामा के अंदर जगह जगह मसीह खुदावन का ज़हूर नजर आता है। पुराने ऐद-ए-नामा में हमें तीन तरह से मसीह खुदावन नजर आता है। सबसे पहले पेशन गोइयों में नजर आता है, उसके बाद मसीह खुदावन की बहुत सी चीजों में, बहुत सी शख्सियात में उसकी झलकियां नजर आती है, और बहुत सी चीजों, बहुत सी अशिया में उसकी जो है वो अलामतें हमें नजर आती हैं। और अगर हम पुराने ऐद-ए-नामा को देखें तो 300 से ज्यादा पेशन गोइयां हैं, और बहुत सी शख्सियात में मसीह खुदावंद नजर आता था। यानी कि इज़हाक में मसीह खुदावंद को देखा जा सकता है, यूसुफ में मसीह खुदावंद को देखा जा सकता है, मूसा में, मलकीसेदक सालम के बादशाह में देखा जा सकता है। और इसी तरह से अगर हम कुछ चीजों को देखें जिनमें मसीह खुदावंद नजर आता था, जैसे फसा का बर्रा, सारी कुर्बानियां जो थी वो मसीह खुदावंद को जाहिर करती थी, मनोसंवा जो था वो मसीह खुदावंद को जाहिर करता था, खैमा इज्तिमा और अहद का संदूक, ये दोनों चीजें जो थी ये खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करती थी। और उनका मकसद क्या था कि खुदा उनके बीच में रहना चाहता था। एक हवाला निकाला जी, खरूज की किताब उसका 25 बाब, और पढ़ेंगे जरा उसकी पहली आयत से पढ़े क्या लिखा है। खरूज की किताब उसका 25 बाब पहली आयत से पढ़े। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इसराइल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं, और तुम उन्हीं में से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। और जिन चीज़ों की नजर तुमको उनसे लेनी है वो ये हैं, सोना और चांदी और पीतल और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा। ये सारी बातें जो पढ़ी जा रही हैं ये खैमा इज्तिमा में इस्तेमाल हुई, और ये सारी बातें, सारे रंग, हर चीज मसीह खुदा की तरफ इशारा करती थी। पढ़े जी। और आसमानी और अर्गवानी और सुर्ख रंग का कपड़ा और बारीक कतान और बकरी की पिशम और मेंढों की सुर्ख रंगी हुई खालें और तखस की खालें और कीकर की लकड़ी और चिराग के लिए तेल और मसा करने के लिए तेल के लिए और खुशबूदार बखूर के लिए मसाला और संगे सुलेमानी और अफूद और सीना बंद में जड़ने के नगीने। और वो मेरे लिए एक मकदस बनाए ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं। और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं ठीक उसी के मुताबिक तुम उसे बनाना। जी हाँ, गौर तलब बात है, खुदा ने बोला कि वो मेरे लिए एक मकदस बनाए। यानी खैमा इज्तिमा बनी इसराइल कौम के लिए नहीं था, ये और किसी कौम के लिए, किसी शख्स, किसी जात के लिए नहीं था, बल्कि ये खैमा इज्तिमा खुदा के लिए था। क्या लिखा है? वो मेरे लिए एक मकदस बनाए। आप यूं कह सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस का या इस दुनिया का सबसे पहला मकदस, सबसे पहली हैकल, सबसे पहला चर्च जो था वो ये खैमा इज्तिमा था, जो खुदा ने अपने लिए बनाया ताकि वहां पे वो सुकूनत कर सके। हालेलुया। ये खुदा ने अपने लिए बनवाया, मेरे लिए वो एक खैमा बनाया। और अगर आप इस खैमा की लंबाई चौड़ाई देखें तो यह खैमा जो था यह तकरीबन 100 फुट लंबा यानी 45 मीटर लंबा था, और 75 फुट चौड़ा यानी 22 मीटर चौड़ा था यह खैमा। एक बड़ी जगह खुदा ने बोली मेरे लिए बनाओ, और ये खैमा जो था ये 3 हिस्सों में तकसीम था। सुनो कैसे। ये इसका बैरूनी सेन पहला हिस्सा था, और ये जो नजर आता है इसके अंदर 2 हिस्से थे, एक पाक मकाम और एक पाक तरीन मकाम। तो खैमा इज्तिमा 3 हिस्सों में तकसीम था। पहले हिस्से को बैरूनी सेन यानी आउटर कोर्ट कहते थे, दूसरे हिस्से को पाक मकाम यानी होली प्लेस, तीसरे हिस्से को पाक तरीन मकाम द मोस्ट होली प्लेस कहा जाता था। और ये तीनों के तीनों हिस्से, इनमें जो कुछ नजर आता है वो हर चीज मसीह खुदावंद की तरफ इशारा करती थी, मसीह खुदावंद की शख्सियत को ज़ाहिर करती थी, उसके निजात के मंसूबे को ज़ाहिर करती थी, और उसकी कुर्बानी की तरफ इशारा करती थी। और अगर आप इस खैमे को देखें तो ये कितना बड़ा खैमा है, आप देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर दरवाजा सिर्फ एक था दाखिल होने के लिए। ये देख रहे हैं, छोटा करें, सिर्फ
ये एक दरवाजा है इसमें दाखिल होने का। ये इस बात की अलामत था कि दुनिया में जितने मज़ाहिब हो जाए, जितने मौलम हो जाए, जितने खुदा हो जाए, जितने नबी हो जाए, आसमान की बादशाहत में जाने के लिए दरवाजा एक है और वो यीशु मसीह है। ये एक दरवाजा, इसमें देखिए 150 फुट लंबा ये खाना है। 150 फुट यानी कितना मीटर जी? ये 75 मीटर 45 मीटर लंबा खाना, लेकिन दरवाजा इसमें एक रखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को दरवाजे से तशबीह दी थी। यूहन्ना की इंजील 10वें बाब के नजर में इसमें क्या बोला? दरवाजा मैं हूं, अगर मुझसे दाखिल होगे तो निजात पाओगे और अंदर बाहर आया जाया करोगे। तो ये एक दरवाजे का मकसद ये था कि निजात में दाखिल होने की सिर्फ एक राह, एक दरवाजा है और वो यीशु मसीह खुदावंद है। सोचिए, इतने बड़े खैमे में 2-3 दरवाजे हो सकते थे ना? क्यों नहीं थे? क्योंकि ये खैमा पूरा का पूरा यीशु मसीह की शख्सियत को जाहिर करता था, इसलिए इसके अंदर एक दरवाजा बनाया कि एक ही है निजात दहिंदा, एक ही है जो जिसके वसीला से यीशु ने क्या बोला? कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं जा सकता। तो इस दरवाजा एक बनाने का मकसद यह था कि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा दरवाजा, हमारी राह है बादशाहत के लिए। उसके बाद अगर आप देखें तो पहला हिस्से के अंदर सबसे पहली चीज जो थी वो थी कुर्बानगाह। क्या थी? कुर्बानगाह। और कुर्बानगाह के बाद दूसरी जो चीज थी पहले हिस्से के अंदर वो था पीतल का हौज, जिसके अंदर पानी होता था। और ये पानी इसलिए होता था कि जब सरदार कायन कुर्बानगाह पर कुर्बानी चढ़ाए, उसके बाद वो पीतल के हौज में जाके अपने हाथ और अपने पांव धो सके। तो ये दोनों चीजें मसीह खुदावंद को जाहिर करती थी। कुर्बानी जो थी वो उसकी सलीब को जाहिर करती थी और पीतल का हौज उनकी रूहानी तहारत को जाहिर करता था, रूहानी पाकीज़ी को जाहिर करता था। आज भी जब हम ईमान लाते हैं तो सबसे पहले हम किस पे ईमान लाते हैं? यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा, हम उसी कुर्बानी पे ईमान लाते हैं, ऐसे है ना? और उसके बाद हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, ऐसे। तो यहां पर भी पहले कुर्बानी थी, उसके बाद तहारत के लिए वो अपने हाथ पांव धोते ताकि पाक किए जाएं। तो आज भी ये जो हम अपनी जिंदगी में देखें तो पहले हम ईमान लाते हैं, फिर पानी का बपतिस्मा लेते हैं। तो ये दोनों चीजें जो पहले हिस्से में थी, ये मसीह खुदावंद की सलीब को और पानी के बपतिस्मा को जाहिर करती थी कि यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हमारी पाकीज़गी कायम की जाएगी और हम जो है वो खुदा के पास जाने के काबिल होंगे। और फिर हम दूसरा हिस्सा, इसे छोटा करेंगे जरा, दूसरा हिस्सा देखें तो दूसरा हिस्सा था पाक मकाम का। मैंने एक और फोटो भेजी थी, एक और फोटो भेजिए। ये था जी, ये पाक मकाम था। इसके अंदर सिर्फ 3 चीजें थी। क्या क्या था? 7 शाखों वाला चिरागदान, एक मेज जिस पे 12 रोटियां थी, और ये पाक तरीन मकाम और पाक मकाम के बीच में एक पर्दा था, और पर्दे के सामने ये कुर्बान गाह थी जिस पे बखूर जलाया जाता था। सिर्फ ये 3 चीजें थी किसके अंदर? पाक तरीन मकाम में, पाक मकाम में सिर्फ 3 चीजें थी। एक और पिक्चर लगाई थी मैंने, एक पिक्चर आपको और भेजी थी, ये देखें, इसमें क्लियर है। तो देखिए यहां पर ये 7 शाखों वाला चिरागदान, 12 रोटियों वाला मेज, और ये आपको पर्दा के सामने बिल्कुल बखूर दान जो कि कुर्बान गाह थी, इस पे बखूर जलाया था। ये तीनों चीजों अगर आप देखें तो ये तीनों की तीनों चीजें मसीह खुदावंद को जाहिर करती थी। अगर हम सबसे पहले चिरागदान को देखें, 7 शाखों वाला जो चिरागदान है, इसके अंदर जैतून का तेल डाला जाता और ये चिरागदान कभी बुझता नहीं था, ये जलता रहता था। पढ़े जरा, इबार की किताब निकालें, इबार की किताब 24 बाब पढ़े जरा, उसकी पहली 2 आयत में क्या लिखा है कि ये चिरागदान हमेशा जलता रहता था।
और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल को हुक्म कर कि वो तेरे पास जैतून का कूट कर निकाला हुआ खालिस तेल रोशनी के लिए लाएं, ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। चिराग हमेशा, यीशु मसीह ने क्या कहा? दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना। 2000 साल से वो चिराग यानी यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है वो जल रहा है, वो बुझा नहीं है। ये चिरागदान जो था ये यीशु मसीह को जाहिर करता था। और इसमें जो 7 शाखें नजर आ रही हैं, मुकाशियों की किताब में कितनी कलीसियाओं का जिक्र है जी? 7 कलीसियाओं को जाहिर करती थी, जिन चिरागदानों में यीशु मसीह घूमता फिरता है। आज भी यीशु मसीह इन 7 चिरागदानों में यानी 7 कलीसियाओं के अंदर घूमता फिरता। अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ महीने पहले मुकाशियों की किताब के ऊपर जब स्टडी की थी, मैंने बताया था कि 7 कलीसियां, 7 तरह की कलीसियां हैं इस दुनिया में। 7 तरह की कलीसियां हैं और 7 तरह के मसले मसाइल हैं कलीसियाओं के अंदर। तो ये जो चिरागदान यीशु मसीह को जाहिर करता था, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला दुनिया का नूर मैं हूं, और वो चिरागदान हमेशा जलता रहता था। खुदा यीशु मसीह चूंकि दुनिया का नूर है, वो इन 7 चिरागदानों में घूमता फिरता आज भी कुदरत के साथ नजर आता है। हालेलुया। उसके बाद ये जो ईरान किताब 24 बाब पढ़ेगी जरा, 24 बाब की 5वीं और 6ठी आयत पढ़े। दूसरी चीज जो कि नजर का मेज जिसके ऊपर 12 रोटियां थी, पढ़ो जरा। और तू मैदा लेकर 12 गिरदे पकाना, हर एक गिरदा में एफा के 2/2 हिस्सा के बराबर मैदा हो, और तू उनको 2 कतारें करके हर कतार में 6-6 रोटियां पाक मेज पर खुदावंद के हुजूर रखना। ठीक है जी। तो ये 6-6 रोटियां खुदावंद के हुजूर में 12 रोटियां थी। ये 12 का जो नंबर था ये 2 चीजों को जाहिर करता था। सबसे पहले पुराने अहदनामा की जो कलीसिया थी उसके कितने कबीले थे जी? 12 कबीले। और नए अहदनामा के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसिया की बुनियाद रखी तो कितने शागिर्द थे जी? 12 शागिर्द थे। और ये जो रोटियां थी, जो रोटी थी, यानी 12 का अदद तो 12 कबीलों को और शागिर्दों को जाहिर करता था, लेकिन जो रोटी थी, रोटी मसीह खुदावंद को जाहिर करती थी। ये समझ में क्या बोला कि जिंदगी की रोटी तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में खाया और वो मर गए। मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं, जो कोई मुझ में समझेगा वो कभी ना मरेगा। तो ये जो रोटियां थी ये मसीह खुदावंद को ज़ाहिर करती थी। और मसीह खुदावंद ने जगह जगह अपने आप को रोटी से तशबीह दी है, यहां तक कि जब आखिरी फसह मनाने लगे थे तो मसीह खुदावंद ने रोटी को किससे तशबीह दी जी? अपने बदन से तशबीह दी। दे रोटी और बोला ये लो, ये बड़ा वो बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। आज हम जब ये रोटी खाते हैं तो असल में हम ईमान से मसीह खुदावंद के बदन को खाते हैं। तो ये जो रोटियां थी ये मसीह खुदावंद को जाहिर करती थी। और तीसरे नंबर पे ये जो बाखूर दान है, ये बाखूर दान जो था, ये बाखूर दान बिल्कुल पाक मकान और पाकतरीन मकान के बीच में उनकी तकसीम के लिए एक पर्दा था जिसके 4 रंग थे। और ये पर्दे के बिल्कुल सामने ये कुर्बानगाह थी जिसको बाखूर जलाने की कुर्बानगाह कहा जाता था। और जो अगर आप पढ़े तो जो बाखूर है जिसको ऊद भी कहा गया है, ऊद और बाखूर जो है ये जब जलाया जाता तो ये असल में जाहिर करता था ईमानदारों की दुआओं को। ईमानदारों की जो दुआएं थी वो इस बाखूर और इस ऊद के वसीला से खुदा तक पहुंचती थी। और सरदार कौन जो था वो जब बाखूर जलाता तो असल में वो कौम के लिए शिफायत करता, कौम के लिए दरख्वास्त करता, कौम के लिए दुआ करता था। और दुआ से पहले वो बाखूर जलाता था। निकालो जरा मुकाशवा की किताब 5वां बाब, पढ़ो जरा उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा जी? मुकाशवा 5 उसकी 8वीं आयत। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊंट से भरे हुए सोने के प्याले थे।
ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। ये मुकद्दसों क्या है जी? ये दुआएं हैं। ये जो बाखूर था, इसका जलाना कुर्बान गाह पे जो था, ये दुआओं को जाहिर करता था। और ये दुआएं जो थी, सरदार कायम जाके कौम के लिए दुआ करता और शफायत किया करता था। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मसीह खुदावंद बाप के दाहिने हाथ बैठा मेरी और आपकी शफायत करता है। हालेलुया। तो ये बाखूर दान जो था, ये कुर्बान गाह जो थी, ये भी मसीह खुदावंद को शफायती के तौर पर पेश करती थी कि मसीह खुदावंद अपने लोगों की शफायत करेगा। और बाइबल मुकद्दस ये कहती कि जमीन के ऊपर रूह कुद्दुस हमारी शफायत करता है और आसमानों में मसीह खुदावंद जो है वो हमारी शफायत करता है। तो यहाँ पे पाक मुकाम में कितनी चीजें हैं जी? 3 चीजें, चिरागदान, बाखूरदान और रोटियां। ये तीनों की तीनों चीजें जो है मसीह खुदावंद को जाहिर करती है। और ये जो मेज था, इसको नजर का मेज कहते थे और ये खालिस लकड़ी से बनाया गया था। और ये लकड़ी जो थी, ये मसीह खुदावंद की सलीब को जाहिर करती थी। हालेलुया। तो याद रखें कि इस जगह पर और इससे पहले और इसके अंदर हर एक चीज जो नजर आती थी वो यीशु मसीह की शख्सियत और उसके किरदार को जाहिर करती थी। इसीलिए हमने अपने मरकजी हवाला में क्या बात बोली, मैं सब वापस निकालूं, लूकास खरूज की किताब उसका 25 बाब और 25 बाब की 9वीं आयत में लिखा, और मस्कन और उसके सारे सामान का जो नमूना मैं तुझे दिखाऊं, ठीक उसी के मुताबिक तो उसे, यानी खुदा नहीं चाहता था कि इंसानी ज़हन शामिल हो, खुदा नहीं चाहता था कि कोई इंसानी सोच इस खैमा के अंदर शामिल हो। खुदा ने एक एक चीज, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात को खुदा ने मूसा को बताया कि तूने ऐसे 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 हर चीज की तरतीब बताई ताकि कोई भी चीज अपनी हिकमत से इस्तेमाल ना की जाए। क्यों? क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव चीज थी और ये यीशु मसीह की अलामतें थी। खुदा चाहता था कि हर एक चीज जो है, जो हकीकी है, वो दुनिया को बताई जाए और कौम बनी इसराइल को इस बात के बारे में बताया जाए कि जिस ख्रिस्तस का, जिस मसीहा का तुम इंतजार कर रहे हो, उसके अंदर कौन कौन सी अलामतें होंगी जो इस चीज के अंदर पाई जाती है। प्रेज़ गॉड। उसके बाद अगर आप देखें तो हम देखते हैं कि ये जो पर्दा था, वापस आ रही, एक इसी तरह एक पिक्चर और निकालो जो इससे पहले लगाई थी आपने। ये जो पर्दा था, इसके अंदर 4 रंग थे। कितना रंग जी? एक रंग था इसके अंदर आसमानी यानी नीला रंग था, एक रंग था इसके अंदर अर्गवानी, एक रंग था सुर्ख और एक रंग था सफेद। निकालो जरा खरूज की किताब, पढ़ो जरा उसके 26 बाब को निकालो और 26 बाब की आप पढ़े जरा 30वीं आयत से पढ़े। और तू मस्कन को उसी नमूना के मुताबिक बनाना जो पहाड़ पर तुझे दिखाया गया है। जी हाँ, यहाँ पर खुदा जगह जगह, आप जहाँ पे खैमा इज्तिमा की मेकिंग देखेंगे ना, वहां पे खुदा ताकीद करता है कि जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया था एग्जैक्ट वैसा बनाना। इस बात पे गौर करना कि खुदा नहीं चाहता कि कोई चीज इंसान अपने ज़हन से बना सके, इसलिए खुदा जगह जगह उसको ताकीद करता है कि जो नमूना तुझे दिखाया तुम्हें वैसे ही बनाना। और यहां तक कि सोचे, एक पर्दा जो डिवीजन के लिए है, ये तकसीम का पर्दा था, कोई भी पर्दा लग सकता था, लेकिन क्या वजह थी कि इस तकसीम के पर्दे की भी खुदा ने डिस्क्रिप्शन दी है, खुदा ने रंग बताए हैं। पढ़ो जी आगे। और तू आसमानी, अर्गवानी और सुर्ख रंग के कपड़ों और बारीक बटे हुए कतान का एक पर्दा बनाना और उसमें किसी माहिर उस्ताद से करोबियों की सूरत कढ़वाना और उसे सोने से मुंडे हुए कीकर के 4 सतूनों पर लटकाना। इनके कुंडे सोने के हों और चांदी के 4 खानों पर खड़े किए जाएं। और पर्दा को खुंडियों के नीचे लटकाना और शहादत के संदूक को वहीं पर्दा के अंदर ले जाना। और ये पर्दा तुम्हारे लिए पाक मकाम को पाक तरीन मकाम से अलग करेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर खुदा ने इस पर्दे के रंग और उसका मटेरियल, यानी मटेरियल क्या यूज करना है, उसके बारे में बताया है। और 4 रंगों का जिक्र है। आसमानी रंग यानी नीला रंग। ये आसमानी रंग, नीला रंग जो है, ये मसीह खुदावंद की अलहुयत को जाहिर करता था
कि वो आसमानों से आएगा। ये उसकी आसमानी अलामत थी कि वो आसमानों से आएगा, वो अपनी जात में खुदा होगा, वो अपनी जात में रूहानी कायम होगा और वो आसमानी चीजों को जानने वाला होगा, क्योंकि वो आसमान से आएगा। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं बाप में से निकला हूं। यानी यीशु मसीह का ये जो पर्दे का नीला रंग था, ये पहली बात ये जाहिर करती थी कि जो मसीह है वो आसमानों से आएगा। ये आसमानी उसकी अलामत थी। और रूहानी रंग जो था ये उसकी बादशाहत और उसकी सल्तनत को जाहिर करता था। जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुए तो जो मजूसी आए थे वो क्या बोलते हुए आए थे जी? बादशाह को, कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कौन है? तो वो रूहानी रंग जो था ये उसकी बादशाहत को जाहिर करता था कि वो बुजुर्ग होगा, उसकी सल्तनत का कोई भी आखिर ना होगा और वो पैदाइश से आखिर तक बादशाह होगा। इसीलिए यीशु मसीह पैदाइश में भी बादशाह था और मौत में भी जो उसकी सलीब पर उसका इल्जाम लगाया वो था यहूदियों का बादशाह। और यह रूहानी रंग था, ये उसकी बादशाहत का, उसकी इज्जत का, उसकी बुजुर्गी का निशान था। और सुर्ख रंग जो इस पर्दे में इस्तेमाल हुआ है वो उसकी कुर्बानी को जाहिर करता था कि वो नस्ल इंसानी के लिए कुर्बान होगा। ये सुर्ख रंग उसकी कुर्बानी का निशान था। और जो सफेद रंग था, सफेद रंग जो था ये उसकी रास्तबाजी को, उसकी पाकीज़गी को जाहिर करता था कि वो जमीन पे रहता हुआ जिस्म के अंदर भी वो पाक होगा, रास्तबाज होगा और ईमानदार होगा। हालेलुया। यही वजह थी कि मसीह खुदावन जो था वो वाहिद जात है जिसने इस बात का दावा किया कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करेगा। कोई शख्स मसीह खुदावन ने आज तक गुनाह साबित नहीं कर सका था। क्यों? क्योंकि वो पैदाइश से मौत तक रास्तबाज था। और जब वो मरा तो क्या लिखा है कि जो आसपास सिपाही खड़े थे, सरदार कौन खड़े थे, उन्होंने कहा बेशक ये मरकज की जिंदगी, बेशक ये शख्स रास्तबाज था। हालेलुया। तो ये जो सफेद कुतानी जो कपड़ा था ये उसकी रास्तबाजी को, उसकी पाकीज़ी को जाहिर करता था। और ये चार रंगों से एक पर्दा बनाया और ये पर्दा जो था ये अभी हमने क्या पढ़ा, तकसीम करता था पाक मकान और पाक तरीन मकाम को। अब खुदा की जो हजूरी थी, खुदा की जो अनाउंटिंग थी, या खुदा रहता पाक मकाम में नहीं था, ना खुदा बार पहले हिस्से में रह रहा था, खुदा रहता था पाक तरीन मकाम के अंदर। वहां पे खुदा की हजूरी 24/7 मुयस्सर होती थी। और बाइबल ये बयान करती है कि वहां पर कोई शख्स नहीं जानता सिवाय सरदार कायम के, और सरदार कायम भी साल में एक दफा वहां पर जाता था। और जाता क्यों था कि साल में एक बार कौम के गुनाहों को उसकी कुर्बानी चढ़ाकर खुदा की हजूरी में जाए ताकि कफारा हो सके आर्जी तौर पर, यानी एक साल के लिए। एक साल के बाद फिर वो अपने मुकर्रर वक्त के ऊपर कुर्बानी करते, तहारत का काम अंजाम देते, पाक मकाम में आके चिरागदान जलाते, खुशबू जलाते, रोटियां खाते और फिर जाते। यानी हर साल का एक प्रोसेस था। और इस प्रोसेस के अंदर यानी जब जो सरदार कायम था वो गुजरता किस में से था भी? इन चार रंगों में से गुजर कर, यानी यीशु मसीह की जात में से गुजर के पाक तरीन मकाम तक जाता था। हालेलुया। इसीलिए आप अगर देखें तो खुदा यीशु मसीह की जब मौत वाकया हुई तो लिखा कि हैकल का पर्दा वो यही पर्दा था जो ऊपर से नीचे तक फट गया था। क्यों? क्योंकि वो इस बात का निशान था कि अब खुदा की हजूरी खैमों में नहीं बल्कि इंसानों में रहेगी। प्रेज़ गॉड। वो इस बात का निशान था, इस बात की अलामत थी कि अब खुदा खैमों में नहीं रहना चाहता, अब खुदा इंसानों में रहना चाहता है। इसलिए हम पाक तरीन मकाम को अगले हफ्ते देखेंगे। पाक तरीन मकाम में संदूक था, संदूक के अंदर तीन चीजें थी, संदूक के अंदर तीन चीजें थी और वो तीन चीजें भी मसीह खुदावंद को ज़ाहिर करती थी। संदूक मसीह खुदावंद को ज़ाहिर करता था। और अगर आप पुराने अहद-ए-नामा को पढ़ें तो बनी इस्राएल कौम में जितनी जंगें की, उन जंगों में उनकी फतह की वजह पता क्या थी?
अहद का संदूक। हालेलुया। यानी यीशु मसीह उनसे आगे आगे उनकी रहनुमाई करता, उनकी क़यादत करता, और उस क़यादत और उस रहनुमाई के वसीला से वो फतह याब होते। और एक जगह पे जब अहद का संदूक नहीं था तो लिखा कि वो शिकस्त उनको मिली। क्यों? क्योंकि उनकी फतह के पीछे अहद का संदूक यानी यीशु मसीह मौजूद होता था। यरू की दीवार जब गिराई, मैं फ्राइडे को सर्मन में बताता, यरू की जब दीवार गिराई थी तो खुदा ने कहा था कि तुमने 7 दिन तक यरू शहर के चौगोर चक्कर काटना है, और 7वें दिन 7 चक्कर काटना है, और अहद का संदूक आगे आगे होगा और कान पीछे में संगे फेंकेंगे। ये अहद का संदूक उनकी रहनुमाई करता था ताकि उनको फतह बख्श सके, जो कि असल में यीशु मसीह था। तो याद रखें कि ये हैकल का पर्दा जो फूटा उसकी वजह यही थी कि वहां पर खुदा ने यीशु मसीह की कुर्बानी पे इस सारे सिलसिले को, जो अहद के जो खैमा इज्तिमा का जो सारा सिलसिला था, खुदा ने उस सारे सिलसिले को मौकूफ कर दिया, और इस बात का ऐलान हुआ कि आज के बाद जो है वो, जिसे पौलुस कहता है कि खुदा ताला इंसान के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, बल्कि वो कहां रहता है? जो उसने खुद बनाया है, यानी इंसान के अंदर अब वो रहेगा। और नए अहद आने वाले हफ्तों में सीखेंगे कि नए अहद का सबसे पहला खैमा इज्तिमा या नए अहद का सबसे पहली हैकल कौन था? यीशु मसीह था। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि अगर तुम इस मकदस को उठा दो तो मैं इसे 3 दिनों में फिर खड़ा कर दूंगा। तो लिखा कि यहूदी कौम और शागिर्द ये समझे कि ये हैकल की बात करता है। उन्होंने बोला 40 सालों में सुलेमान बादशाह हमारे बाप ने इस हैकल को तामीर किया, तू कहता मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। जबकि यीशु मसीह लिखा अपने बदन, अपने मकदस, अपने खैमा की बात करता था जिसमें खुदा सकूनत करता था। और यीशु मसीह के बाद आज मैं और आप खुदा का मकदस, खुदा का खैमा है, जहां पे यीशु सकूनत करता है, बाप सकूनत करता है, रूह कुदस सकूनत करता है, और वो तीनों हमारे साथ रूह में रहते हैं। क्योंकि अब हमें खैमों की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कफारा दे के मुझे और आपको आजाद करा दिया। प्रेज़ गॉड। तो हम आने वाले हफ्ते में एक हफ्ता और हम इसके बारे में देखेंगे। ये मैंने आपको 40 मिनट में सब कुछ बता दिया। असल में अगर मैं इसकी डीप स्टडी में, तो शायद 6 महीने में इसकी एक एक चीज की डिटेल है। इवन आप ये देखें जो नीचे ये जो इसकी घड़ी हुई ये चीजें हैं, इनके कड़े, इनके कड़ों के मकसद है, इन चाबियों के मकसद है, इस गुलदान का मकसद है, इनकी टांगों के ऊपर जो कढ़ाइयां, हर एक चीज का एक मकसद है। लेकिन ऑफ कोर्स मैं इतनी गहरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसमें आप बोर हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको जो बताना ये चाहता हूं कि ये खैमा इज्तिमा 100% यीशु मसीह की अलामत था। कौम इस्राइल को बताया गया कि ख्रिस्तस मसीहा जो है उसकी क्या खासियत होगी और वो किस तरह से आएगा, किस तरह तुम्हारे दरमियान रहेगा। इसलिए खुदा ने नमूने के तौर पर खुदा की हजूरी का खैमा उनको दिया। और बनी इस्राइल कौम, आप जानते हैं, इस खैमा के बगैर आगे मूव नहीं करती थी। ये खैमा उनके साथ साथ रहता और वो मूव करती, जो इस बात का निशान था कि जैसे पुराने अहदनामाई कलीसिया में यीशु मसीह खैमा के वसीले से मौजूद था, आज भी कलीसिया बगैर मसीह के एक लम्हा भी नहीं चल सकती। याद रखें, आज भी कलीसिया यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं है। यीशु मसीह है, उसका रूह है तो कलीसिया है, वरना कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब यीशु मसीह आएगा, रूह कुदस भी उठा लिया जाएगा, मुकद्दसीन भी उठा लिया जाएगा, पीछे कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमें जरूरत क्या है? मैं बेसिकली इस टॉपिक को शुरू करने का मेरा पर्पस ये था, हम आखिरी पैगाम में इस बात को देखेंगे कि क्या पौलुस रसूल के कहे के मुताबिक मैं और आप खुदा का मकदस हैं या नहीं? क्या हमें खुदा का रूह बसा है या नहीं? अगर हम खुदा का मकदस नहीं तो मेरे ख्याल से हमारा चर्च आना, हमारा इबादत करना ये किसी काम का नहीं है। हमें खुदा का मकदस बनना है ताकि हम एक दिन खुदा तक पहुंच सकें। प्रेज़ गॉड। इस बात को हम आने वाले दिनों में जानेंगे और मेरा ईमान है कि आप इसके वसीला से बरकत पाएंगे। खुदा सबको बरकत दीजिए।